एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बिंदास एजुकेटर। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू स्टडी द principle of equipartition. Okay, so what is this equipartition? So बच्चे actually whenever there is equipartition of energy. Okay, so I'm really very sorry if there are any kind of background noises. Okay, so I'm working with all of my limited, limited sources, whatever I'm having. So basically, the principle of this equipartition of energy, it states that total energy. Okay, it is very important. Okay, so it states that total energy of a gas molecule, total energy of a gas molecule is distributed on or distributed in its all degrees of freedom. Okay, in all degrees of freedom. What does it mean? So whenever we have the total energy of the gas molecules, okay, so their total energy, suppose we are having total energy of a gas molecule, so this total energy will be distributed in its all degrees of freedom. Okay, so in last lecture we studied about the degrees of freedom. Okay, so we studied 3 degrees of freedom. What were these? There was translational degree of freedom, then we studied rotational degree of freedom, then we studied vibrational degree of freedom. And how to find the number of translational degree of freedom, rotational degree of freedom, vibrational degree of freedom? You can see our previous lecture, link is given in the description of the video. Okay, or you can directly go to the playlist of the thermal physics, there also you can find. Okay, so from there, if suppose for an example, this all degree of freedom, the energy is distributed with which is equal to, okay, which is equal for every degree of freedom. Okay, it is equally distributed. Okay, it is equally distributed. For example, if its value is for each degree of freedom, its value is 1/2 kT. Okay, so what does it mean? So you know very well, suppose we are having a molecule. For example, we have a molecule, suppose we are having a molecule helium. Okay, so helium, you know very well that it is monatomic molecule. Okay, so it is monatomic molecule, that means for this the translational degree of freedom, so we represent by Ft, so translational degree of freedom will be 3. Okay, so if we write total energy of monatomic molecules, so that will be equal to 3/2 kT. Okay, here this 3/2 is nothing but degree of freedom or total degree of freedom. So for in the case of monatomic gas, as we have only translational degree of freedom, that is 3 for helium, so it will be 3/2 kT. And that's what I told you in the previous lecture when we spoke about the total energy. So I gave you a formula that total energy is equal to 3/2 kT, and there I told you that it is only true for monoatomic gas. So here we can say that this formula is true for only monatomic gas. Okay, this is true for only monatomic. Okay, ओनली मोनोटोमिक, सिर्फ मोनोटोमिक के लिए बच्चे ये फॉर्मूला वैलिड है, बाकी इसके अलावा कहीं भी वैलिड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई डायटोमिक गैस है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कैसी गैस है बच्चे? आपको पता है कि ये हमारी डायटोमिक गैस है. अगर इफ दिस इज अ डायटोमिक गैस, इसका मतलब इसकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसके पास? इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा फिक्स होती है. और इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी. ठीक है, और
अगर हम कंसिडर करते हैं, देखो जनरली हम क्या बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं कि यूजुअली टेम्परेचर इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हमेशा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव रहे। तो जब तक क्वेश्चन में ना गिवन हो, वी हैव टू कंसीडर दैट दिस vibrational degree of freedom is not there. Okay, so until and unless it is given in the question, till then you can make it out. Okay, if not given, if not given, okay, if not given in the question, then we don't have to consider the this vibrational degree of freedom. Okay, so if vibrational degree of freedom is not there, so what we will do, we will calculate total degree of freedom. So we have got degree of freedom for diatomic gas is how much? For diatomic gas it is 5. Okay, mentioning that, keep it in mind, यहाँ पर हमने vibrational degree of freedom को consider नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए एक बार अगर हमने कंसीडर नहीं किया तब देख लेते हैं। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, टोटल 5 होगी। तो अगर टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर कोई पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा बच्चे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम F/2 kT से, है ना। जनरली वहां पर F क्या है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 5/2 kT। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बच्चे हमें यहाँ पर जो है, हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारी जो टोटल एनर्जी है, सॉरी हमारे जो यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड है वो भी एक्टिव है। ओके, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं if vibrational mode is also active, if vibrational mode is also active, so अगर यहाँ पर हम बात करें कि वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव है तो क्या होगा? आपको पता है कि वाइब्रेशनल मोड अगर एक्टिव है तो वाइब्रेशनल मोड को फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है। देखो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या था? लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल मोड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? वो था बच्चे हमारे पास 3n-5। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो वाइब्रेशनल मोड कितना आ जाएगा? 3 2 6 -5। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 3 × 2 -5, तो ये कितना आ जाएगा? 6 - 5 दैट मीन्स 1। ठीक है, यानी कि 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इंटू 2। तो कितनी हो जाएगी? 1 × 2, यानी कि 2 हमारे पास आ जाएगी डिग्री ऑफ वाइब्रेशन। तो अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बच्चे हमारी? ये हो जाएगी 3 ट्रांसलेशनल +2 रोटेशनल +2 वाइब्रेशनल, तो टोटल कितनी होगी? 7। तो इस केस में अगर हम टोटल एनर्जी अब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बच्चे? यहाँ पर हमारा टोटल एनर्जी इस केस पे हो जाएगा 7/2 kT। ठीक है, अब 7/2 kT ये किसके लिए है बच्चे? ये सिर्फ एक एटम के लिए। ओके, दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हम बात करते हैं किसके लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो अगर हमें कहा जाए कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, सो टोटल एनर्जी ऑफ गैस कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? विच कंटेन्स, और वी कैन से कंटेनिंग, तो गैस कंटेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो देखो कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमने कितनी लिखी है? एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, टोटल एनर्जी हमने कितनी लिखी है बच्चे? वो लिखी है हमने F/2 kT। ठीक है, तो n नंबर के लिए कितना हो जाएगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय n। सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका? टोटल एनर्जी हो जाएगा F/2 nkT। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हमने जो है स्टार्टिंग में जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था तो हमने एन के टी को इक्वल किया था किसके? एनआरटी के इक्वल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चे? इस एन के टी को एनआरटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आ जाता है, और वो क्या होगा? वो हमारे पास हो जाएगा बच्चे, टोटल एनर्जी ई टी इज इक्वल टू F/2 इंटू NRT। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को डील करते हैं। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में बेसिकली हमने देखो कुछ 2-3 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से? कि पहली चीज कि टोटल एनर्जी जो होती है वो सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है।
और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो मान लो अगर यहाँ पर देखो कितनी है, अगर मान लो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 7/2 NKT। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने की होगी 1/2 NKT प्लस 1/2 NKT। ठीक है, सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड, ऐसे ही यहाँ पर थर्ड आ जाएगा 1/2 NKT, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, सेवन आ जाएगा तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 NKT। तो हमने क्या देखा कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसकी वैल्यू कितनी है हाफ NKT। ओके, सो ये हमने पढ़ा कि हर एक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हाफ NKT। तो अगर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से। और हमने पढ़ा कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमेशा टोटल एनर्जी कितनी होगी फॉर मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए, क्योंकि हमें पता है कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो जीरो हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, तो वहां उनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चे, उनकी टोटल एनर्जी हमेशा कितनी रहेगी 3/2 NKT। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, और यहाँ से आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चे मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में और योर स्पेसिफिक हीट के बारे में सारी। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है और आपकी थर्मल कैपेसिटी होती है, तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको CPCV से इंट्रोडक्शन मिलेगा आपका, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CPCV वगैरह और उनका रिलेशंस वगैरह, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी तक हमने इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जितना पढ़ा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में उन सारी चीजों को हम इकट्ठा रिलेट कर देंगे। तो अगर आपने ध्यान से पीछे वाले सारे लेक्चर देखे हैं, ठीक है, फ्रॉम थर्मोमीट्री, कैलोरीमेट्री, ये सारे लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं, ठीक है, साथ साथ में बीच बीच में क्वेश्चन बैंक भी हमने डाले हुए हैं, तो अगर आपने ये सारे लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आगे आने वाले लेक्चर में हम सारा जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा है तो मैं इतना मैंने अच्छे लेवल पर अपने ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया है कि आपको सारे फॉर्मूलेज आप रिलेट कर पाओ, सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपके आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।